जब ये टूर्नामेंट शुरू हुआ था वो पहला मैच देख के मेरा दिल बैठ गया था। फिर बट लकीली मैं सेमीफाइनल में था डीवाई पाटिल स्टेडियम में। जब मैंने खेलना स्टार्ट किया था मिताली दी एंड जुलू दी को देखा था हमने, और उन्हीं की वजह से क्रिकेट इतना ग्रो किया है इनिशियली। अगर मैं बताऊं तो अच्छा लगता है सर। देखिए 25 में फाइनली हम लोगों ने ट्रॉफ़ी जीता और पूरा एज अ टीम फुल एफर्ट था, तभी ये हम हासिल कर पाए। लाइक वो टारगेट देख के क्या लग रहा था? आई थिंक सर जैसे आपने ही बोला और मैम ने ही बोला कि पॉजिटिविटी एक अलग ही थी डीवाई पाटिल में। एंड आई थिंक हम सब की यही बात चल रही थी कि ये 7 घंटे जान लगा देनी है। एंड हम सब बहुत कीन थे कि हम सब वो शोड अप दिखाएंगे एंड वो हम दिखाएंगे कैसे हम साउथ अफ्रीका की टीम को पैक करेंगे। एंड हम सबको बस यही बोला गया था हमें 10 बॉल अच्छी डालनी है और जल्दी जल्दी ख़त्म करना है। बट आई थिंक पॉजिटिविटी बहुत ज़्यादा थी सर एंड वी ऑल आर वेरी पम्प्ड अप एंड दीप्ति टुक 5 विकेट्स ऑन दैट डे। सो आई थिंक बहुत अच्छा दिन गया हमारी पूरी टीम के लिए एंड काफ़ी खुशी का मोमेंट है सर वो हम सब के लिए और काफ़ी दिल के करीब है वो दिन। It's incredible what has happened. The same people who used to, look down upon women's cricket were at that stadium crying, screaming, shouting, all the cheers, all the cheerleading squad were these uncles. It was a family event. हम जब सिर्फ men's cricket देखते हैं, it's more of men audience we see. There were women, there were grandmothers, there were small girls, the boys, uncles, everyone. And I still get goosebumps thinking of that. I was there at the 2011 World Cup. Watched a lot of cricket, but the atmosphere that I saw at DY Patil doesn't compare to anything I've seen before. Since morning, of course, we're talking about how our economy is growing, how our aspirations are growing. Possibly the aspirations are going, growing at a speed faster than we ourselves as a nation. But there's certain milestone events. There's certain iconic victories that happen along the way that make us Indians believe in ourselves so much more. They make us believe and realize that we are fearless and we can dream beyond boundaries and we can achieve whatever we want to. Ladies and gentlemen, in November this year, 2025, we won our first Women's Cricket World Cup. And we are more than honored to have some of the stars that made it possible for us. Thank you so much for, of course, the wonderful feat, but for also helping us believe in ourselves. So we have a wonderful fireside chat coming up. And to do the honors, it's my privilege again to welcome to the stage K. Srinivas Rao, cricket editor, The Times of India. You have the enviable job of speaking to our stars. So a warm welcome. Ladies and gentlemen, this is From India to the World through the lens of India's girls. It is truly my pleasure to invite Deepti Sharma, Indian international cricketer, Shafali Verma, Indian international cricketer, Sayami Kher, actor, sports presenter, and a two-time Ironman athlete. Woo! A journey of grit, ambition, and global excellence really embodies the theme From India to the World. So take it away. Comfortable? I need to check if they're comfortable because I'm really thankful for them to take the time out and be here today evening. It's been, these two have to be in Bangalore tomorrow for a fitness test. And it starts early in the morning, so thank you very much. Thank you, Saimi. Saimi has been in the middle of shoots. She's taking time out to be here. It's a cricket event, and she said there's no way I'm missing this. So thank you so much, ladies. And we are short on time, so I'll keep this quick. She has a flight to take. We need to first absorb a little more of what has happened, all right? Shefali, I was actually thinking about you. मैं अभी अंदर आ रहे थे तो मैं थोड़ा सोच रहा था कि लाइक 21 साल की हो, मतलब इतनी घाई क्या है सक्सेस की? सब कुछ मतलब वो एक आइजैक न्यूटन की एक स्टोरी है कि 26 इतना साइंस में एक्सपेरिमेंट्स और सब कर लिया। आपको देख के यही लग रहा है कि आप मतलब कुछ 25-30 तक छोड़ने वाली हैं या सब? First of all, good evening everyone and thank you for having me sir. And to answer your question, सर बचपन में बहुत जल्दी स्टार्ट कर दिया था और आपके मुंह में घी शक्कर की और मैं 25 साल तक सब कुछ कमा लूँ। बट देखिए एक स्पोर्ट्स पर्सन का हमेशा से यही एम रहता है टू ग्रो इन आवर लाइफ
एंड हर दिन हम यही सोचते हैं ग्रो करें अपनी लाइफ में, एंड आई एम वेरी ग्रेटफुल कि 21 साल में मैं इतना कुछ कमा पा रही हूँ। और मुझे अभी रुकना नहीं है, हमें वुमेंस क्रिकेट और ऊपर वाले लेवल पे लेके जाना है, एंड वी ऑल आर वेरी एक्साइटेड एंड वी आर डूइंग हार्ड वर्क फॉर दैट ओनली सर। इसका ग्रैंड एंट्री था इनका, मतलब सेमीफाइनल तक तो इन्होंने बोला था कि आप लोग खेल लो, मैं आती हूँ फिर बाद में लाइक आराम से, एंड देन सेमीफाइनल में आती है एंड फाइनल कॉन्कर करके चले जाती है। उसी को अगर मैं कंपेयर करूँ, अगर आपसे, आपको, मेरे को आज भी 2017 याद है, वो 2017 का जो एक पेन था, कैन यू एक्सप्लेन दैट? वो हमको आप बताओ कि वो 2017 का जो हार्ट ब्रेक था और जो 2025 में कामयाबी मिली, क्या आप उसको एक समराइज़ करके हमको बता सकती हो वो फीलिंग क्या है? सर देखिए, फर्स्टली गुड इवनिंग एवरीवन एंड थैंक यू फॉर इनवाइटिंग मी हियर। जैसे आपने बोला 2017 में, क्योंकि इतने लंबे टाइम से हम लोग वेट कर रहे थे ये ट्रॉफ़ी का, और ये फाइनली इंतज़ार जो था पूरा हुआ, लेकिन इसके पीछे बहुत हार्ड वर्क करा हम लोगों ने एज अ टीम। जैसे अगर मैं पहले की बात करूं, जब मैंने खेलना स्टार्ट किया था, मिताली दी एंड जुलू दी को देखा था हमने, और उन्हीं की वजह से क्रिकेट इतना ग्रो किया है इनिशियली, अगर मैं बताऊं तो। अच्छा लगता है सर, देखिए 25 में फाइनली हम लोगों ने ट्रॉफ़ी जीता, और पूरा एज अ टीम फुल एफर्ट था, तभी ये हम हासिल कर पाए। जब ये टूर्नामेंट शुरू हुआ था, वो पहला मैच देख के मेरा दिल बैठ गया था। फिर बट लकीली मैं सेमीफाइनल में था DY पाटिल स्टेडियम में। Saimi, I was telling you about it. I entered the DY Patil Stadium. I was stunned. You've seen cricket for such a long time. You've seen cricket from kind of, you've cracked the game. You've even played the game at a younger level. Tell me, have you seen this kind of traction around women's cricket ever? And what do you think is the reason? I mean, other than WPL, of course. Thank you, sir. Good evening, everyone. Firstly, I am here and I'm a big fan of both these girls here. So I'm very honored to be on the stage with both of them. So I was at DY Patil cheering the entire team there. The question you asked is, have I seen this kind of turnout? I'm much older than both of them. So I have, जब मैं बचपन में क्रिकेट खेलती थी, मुझे क्रिकेट खेलना था, मैं नासिक की हूँ, और वहाँ पर सबके पास स्टोरीज़ है कि लोग हंसते थे, लड़की है तू क्या क्रिकेट खेलेगी, वो सब स्टोरीज सब लोगों ने सुने हैं। तो वही जो अंकल्स थे, जब मैं क्रिकेट की बात करती थी, दोज अंकल्स यूज्ड टू से व्हाट डू यू नो अबाउट क्रिकेट, दोज वर द अंकल्स क्राइंग वॉचिंग व्हाट दीज गर्ल्स हैव डन. So I feel it's incredible what has happened. The same people who used to look down upon women's cricket were at that stadium crying, screaming, shouting, all the cheers, all the cheerleading squad were these uncles. It was a family event. हम जब सिर्फ men's cricket देखते हैं, it's more a men audience we see. There were women, there were grandmothers, there were small girls, the boys, uncles, everyone. And I still get goosebumps thinking of that. I was there at the 2011 World Cup. Watched a lot of cricket, but the atmosphere that I saw at DY Patil doesn't compare to anything I've seen before. मतलब midway through the event, जब जो innings break था, innings break में क्या लग रहा था? Like वो target देख के क्या लग रहा था? आई थिंक सर, जैसे आपने ही बोला और मैम ने ही बोला कि पॉजिटिविटी एक अलग ही थी DY पाटिल में, एंड आई थिंक हम सब की यही बात चल रही थी कि ये 7 घंटे जान लगा देनी है, एंड हम सब बहुत कीन थे कि हम सब वो शोड अप दिखाएंगे, एंड वो हम दिखाएंगे कैसे हम साउथ अफ्रीका की टीम को पैक करेंगे, एंड हम सबको बस यही बोला गया था हमें 10 बॉल अच्छी डालनी है और जल्दी जल्दी ख़त्म करना है. बट आई थिंक पॉजिटिविटी बहुत ज़्यादा थी सर, एंड वी ऑल आर वेरी पम्प्ड अप, एंड दीप्ति टुक 5 विकेट्स ऑन दैट डे. सो आई थिंक बहुत अच्छा दिन गया हमारी पूरी टीम के लिए, एंड काफ़ी खुशी का मोमेंट है सर वो हम सब के लिए, और काफ़ी दिल के करीब है वो दिन. वो आपका वो लेजेंडरी थ्रो वाला जो स्टोरी है, ओके, हेमलता काला वाज द वन जिन्होंने वो थ्रो देखा था, राइट? आपका, एम आई राइट? हाँ, आई मीन उनके बाजू और भी लोग थे भैया के पास, तो उन्होंने ही भैया को बोला था कि आप अपनी बच्ची को क्रिकेट खिलाओ, लाइक सर वगैरह काफ़ी लोग थे उस टाइम पे आजू बाजू. और वो मोमेंट जो है वो आपके जहन में, वो आपके पर्सनालिटी में एक थॉट डाल गया कि आप ये गेम खेल सकती हैं, ठीक है? तो जब आप ये गेम खेलना शुरू करी थी, एक वर्ल्ड कप जीतना कितना इम्पोर्टेंट
एक लैंडमार्क था आपके दिमाग में कि आपको लग रहा था कि नहीं, मैं अगर सक्सेसफुल तभी होंगी जब हम एक वर्ल्ड कप का टाइटल लेके आएंगे? वो एक मेंटालिटी था, या कि हमको खेलने को मिल रहा है यही बहुत है, और एक टॉप लेवल पे क्रिकेट खेलने को मिल रहा है, दिस इज़ व्हाट? वो मैं ये जानना चाहता हूँ कि वो एस्पिरेशन लेवल क्या था आपका? सर देखिए, जब खेलना स्टार्ट किया था तो ड्रीम था कि इंडिया के लिए खेलना है। वो ब्लू जर्सी का एक अलग ही फील आता है। जब भी मैंने टीवी पे मैचेस देखे थे तो बस यही था कि एक ट्रॉफ़ी लेकर आना है, जो कि इतने सालों से वेट हो रहा है। और देखिए काफ़ी चेंजेस भी आए हैं वुमेंस क्रिकेट में अगर हम देखेंगे तो। और स्टार्टिंग से इंस्पिरेशन मेरे भैया ही रहे हैं, जो हमेशा खेलते हुए आए हैं, फैमिली बैकग्राउंड ऐसा रहा है। और बस मैं चाहूँगी कि जैसा हमने करा है इसको हम बरकरार रखें आगे भी आने वाले टाइम में। ओके, इस बारे में और बात करेंगे, बट मैं पहले संयमी से एक दो सवाल और कर लेता हूँ ताकि उनका फ्लाइट है वो चले जाएगी। संयमी, व्हाट आई वांट टू अंडरस्टैंड इज, ये जो लड़कियाँ हैं, स्पोर्ट बहुत क्रूअल स्पेस है। क्रूअल स्पेस इसलिए है क्योंकि 30-35 के एज में मैं अपने करियर में, या ये जहाँ पे जितने भी लोग बैठे हैं सब अपने करियर में 30-35-40 का एक जो स्टेज होता है वहाँ पे ये सोचते हैं कि ओके, अब मैं क्या करूँ लाइफ में ऐसा कि माय करियर कैन गो टू द नेक्स्ट लेवल, राइट? हाउ डू आई प्रोग्रेस इन लाइफ? स्पोर्ट्स पर्सन का करियर इतना क्रूअल होता है कि वो इस स्टेज पे पहुंच जाते हैं 30-35-40 में कि उनका जो पीक लेवल का जो अचीवमेंट है वो ख़त्म होने लगता है। मतलब जिस चीज़ के लिए वो बने हैं वो चीज़ का मतलब द यूज गेट्स डन विद। इट्स सच अ क्रूअल वर्ल्ड। सो help me understand, what should the girls do to keep those aspirational levels going after they have finished playing, and how exactly do they find part 2 of their careers? How do they define it? So I feel the second innings of all the girls playing right now, I was discussing this with a few of the men broadcasters out there, is I as a fan want to see a lot more of women's cricket being telecasted. I want to see more cricket being played. Right now we are celebrating the World Cup because the Women's World Cup has been won, which is a massive big feat. But I wish that women's cricket, there are more test matches that are played, there are more games that are played, and we get to watch this as an audience. Right now, they're young girls, they're playing once they turn 35, 40. We have a certain MSD playing beyond 44, 45, so maybe till 45 they play. But I feel after that, I'd want these girls to be there as broadcasters. I want to see these girls in the administration. I want to see them give back to the sport because they have lived the journey. And there is so much that has to be done for women's cricket, and there'll be no one better than them because they have lived the journey, experienced the journey. So they will just enrich the sport much more. So I hope that they all get back to the sport in some form or the other, be it broadcast, be it administration, be it coaching, because it's only going to grow. It's not necessary that every sports person has a very public personality, which kind of allows them to do something, drastically different in life. But then, you think there needs to be some kind of a mechanism to find a way to kind of adjust different personalities so as to help them find, is that something that the Indian sports ecosystem you think is missing, where there needs to be some kind of a mechanism to allow athletes from different parts of this thing to kind of help them understand what can you do post your retirement, like a post-retirement counseling, kind of a thing? I completely agree with you, and I feel this is for all sport. It's not only cricket, women's cricket, it's for all sport because you're very young, you're still 35, 38, and you have a whole life ahead of you. And it can get very depressing because you've lived this high for so long. When you're in the stadium, you're seeing the crowds, you're scoring the runs, getting the wickets, you're living a high, and then suddenly it goes away at 35, 37. So like you're correctly saying, I hope Instagrams become such a big thing that be it actors, be it sports people, everyone has to be on Instagram and be very public, but not everyone's personality is like that, and you should celebrate everyone's uniqueness because there are a lot of people who are not out there and they can give so much back, but like you're saying, before the counseling with regards to what should be done,
in the second innings, I feel there should also be counseling with regards to how to deal with retirement. I feel that's not really dealt with very well for sports people. So I hope that is included in the ecosystem somewhere. Thank you so much. And I'll make sure that somewhere I convey that valuable suggestion that women's cricket needs to have its own Mushtaq Ali tournament. I think Yes, I really hope to see more domestic, and really hope to see more test cricket, because I think we all are talking about that only कि हम सब player we all like test games because हमारे पास इतना time होता है मेरे लिए as a batsman batting करने का, जब मन करे तभी मार दो या जब मन करे जब नीचे खेलो. But we all love test cricket because जब हमने बचपन से cricket खेलना start किया तो हम सब ने white dress में start किया था hopefully. And that's why only we all love test cricket a lot, and hopefully as she said test cricket और हमें मिलेगा और chance मिलेगा खेलने का ताकि हम और अच्छे player बन पाए. Done. We'll continue the discussion, but Saimi, thank you so much. thank you so much. My apologies, but it was an absolute pleasure and good luck. I'll hope to be seeing them pick up many more trophies in the future. Thank you so much. दीप्ति, मैं आपसे जानना चाहूँगा, मैं ऑक्शन देख रहा था WPL का, स्टनिंग ऑक्शन और रिजल्ट. मैं एक कमरे में बैठा था जिसमें कई लोग, एक पैक्ड कमरा था, एंड वो जो एक जॉय, जो एक लोगों में एक वो सही तरीके का जो एक इनबिल्ट जॉय था जब उन्होंने देखा आपका जो बिडिंग हो रहा था हुआ, और उसके बाद में जो राइट टू मैच कार्ड अप्लाई हुआ, लोगों को जितनी खुशी हुई. लोग मतलब इस कंट्री में अगर सक्सेस है तो लोग सर पे बिठाने को तैयार हैं लोगों को. आपको ये किस हद तक, ये इससे क्या सीख मिली? आप व्हाट डू यू टेक? ये आपको हर जगह आप जहाँ जाती हैं, टुडे यू आर द वुमेन क्रिकेटर ऑफ द ईयर, आप वर्ल्ड कप प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट हो. आपके स्ट्रगल्स में देखता हूँ, आपने जो स्ट्रगल्स किए वाइट बॉल क्रिकेट में बिलोंग करने के लिए, जिस तरीके से आपने अपने गेम को चेंज किया और आज इस मुकाम पे आप आके पहुँची है. मुझे ये बताइए कि आपका एक सिंगल बिगेस्ट टेक अवे क्या है? आप क्या मतलब इसको समराइज करके एक लेसन क्या है? आई थिंक बीइंग अ वुमेन मुझे बहुत अच्छा लगता है कि लाइक जब मैं बॉर्न हुई तो एज अ गर्ल बॉर्न हुई, और अभी जैसे वुमेन क्रिकेट में मैं खेल रही हूँ तो मुझे ये बहुत अच्छा लगता है देख के. और वुमेन क्रिकेट को ही नहीं, आगे भी अगर देखें तो इंडिया में काफ़ी ग्रो कर रहा है जितने भी. ग्रेट एंड वेरी दैट पर्सन की जाके कुछ भी कर सकते हैं, बट आई डोंट थिंक अंग्रेजों में वो कला है to be skillful, to be very strong, but they are very good from their mind. That I'm sure, and that I'm proudly can say. But that only we are just learning from them, and we all know Australia कितना टक्कर देता है हमें हमेशा, and हम उनसे हमेशा ये सीखते हैं वो कितने strong है mind से, but they are very strong from their mind, sir. WPL के कारण चेंजेस आए हैं? मतलब आप लोग एक ड्रेसिंग रूम शेयर कर रहे हो, साउथ अफ्रीकन्स भी वहीं पे है, ऑस्ट्रेलियंस भी वहीं हैं, वेस्ट इंडियन लड़कियां भी हैं, तो उनके साथ में आप दिन रात आप ट्रेनिंग कर रहे हो, खाना खा रहे हो, सोशलाइज कर रहे हो, उसका कुछ फ़र्क पड़ता है? जब हम सीरीज़ खेलते हैं तो अगेंस्ट में खेलते हैं, और एग्जांपल्स देना. लेकिन WPL ऐसा प्लेटफॉर्म है कि हम सबके साथ एक ही ड्रेसिंग रूम शेयर करते हैं, और सबके थॉट्स के बारे में भी पता चलता है, चाहे वो किसी भी कंट्री के प्लेयर हो. और बहुत हेल्प करता है. देखिए जब BCCI ने ये स्टार्ट किया तो काफ़ी जो भी यंग गर्ल्स हैं उनको भी हेल्प करता है, एज वेल एज जो सीनियर हैं, कि उनसे अपने पॉइंट शेयर कर सकें और उनका माइंडसेट क्या रहता है, और ऐसे एंजॉय भी करते हैं हम. सर आई विल टेल यू द WPL स्टोरी कि हमें क्या सीखने को मिलता है फॉरनर से. सो आई सिलेक्टेड फ्रॉम दिल्ली कैपिटल्स, एंड हमारी कैप्टन अभी वो दूसरी टीम में चली गई है, सो सैड फॉर मी एंड फॉर आवर टीम. बट मैं ऑस्ट्रेलियन के आसपास जब भी रहती हूँ, कोई भी फॉरनर्स के आसपास रहती हूँ, तो मुझे उनसे ये सीखने को मिलता है उनका कैसे उन्होंने अपनी चीज़ें अलाइंड कर रखी है मैच से पहले, कैसे वो अपने आप को प्रिपेयर करते हैं, एंड कितने मेंटली वो स्ट्रॉन्ग है. तो मैं जब भी जाती हूँ मैं कीन हमेशा WPL के लिए इसलिए रहती हूँ क्योंकि वहाँ फॉरनर्स के साथ खेलने का मौका मिलता है, एंड उनके साथ ड्रेसिंग रूम शेयर करने का मौका मिलता है. एंड सर आई एम वेरी ग्रेटफुल कि BCCI ने स्टेप उठाया,
एंड हम सब आज के टाइम जैसे फाइनल में इतना बड़ा क्राउड था तो हमें 1% भी झिझक नहीं हुई, बिकॉज WPL में इतना ज़्यादा क्राउड होता है और इससे भी ज़्यादा होता है, तो मतलब झिझक वो चली जाती है. एंड वी ऑल आर वेरी थैंकफुल टू BCCI what they have did for us, and even Jaisha sir as well, because the way he did the pay parity for men's and women's. उसके बाद हम आज के टाइम हम अपना खुद का ग्राउंड ले सकते फॉर द प्रैक्टिस. We can take our personal trainers for our good body setup and good nutrition as well. So I think we are very grateful what they did for us. और अभी तो नया NCA भी है जहाँ आप जाने वाली हैं आप लोग, सेंटर ऑफ एक्सीलेंस. वहाँ हर फैसिलिटी एक जो इंटरनेशनल स्टैंडर्ड की होनी चाहिए वो अवेलेबल है. मेरे को एक बात बताइए, अभी ये पे पैरिटी आ गया और ये सब चीज़ें पहले जब WPL नहीं था तो इंटरेक्शन भी कम होते थे बाहर के क्रिकेटर्स. तो जब हम बाहर टूर करने जाते थे, बाहर सीरीज़ खेलते थे, तो एक झिझक सी होती थी कि मेरे में है कॉन्फिडेंस, बट शायद मैं जो मेरे मन में बात है वो मैं कह नहीं पा रही हूँ. एक झिझक सी होती थी किसी भी तरह की, या पहले भी आपको लगता है कि एक जो कॉन्फिडेंस लेवल था उतना ही था कि बट पहले लोग इतना शायद सुन नहीं रहे थे, आज वर्ल्ड कप चैम्पियंस है तो सब सुन रहे हैं क्या? नहीं सर, ऐसा नहीं है. कॉन्फिडेंस तो पहले भी था, अभी प्लस और भी बढ़ गया है क्योंकि नंबर ऑफ़ मैचेस भी ज़्यादा हो गए हैं थैंक्स टू जयशाह सर कि उन्होंने विमेन क्रिकेट के लिए इतना अच्छा टेक अवे लिया है. लाइक अगर एग्जांपल दें तो WPL भी स्टार्ट हो गया है जिसका वेट था हमें. और देखिए कॉन्फिडेंस काफ़ी बढ़ा है. अगर मैं 2017 वर्ल्ड कप की बात करूं तो उसके बाद में सभी को पता होता है कि विमेंस क्रिकेट कब आने वाला है और वो प्रॉपर फॉलो करते हैं. और जैसे बोलें कि फ़ैन फॉलोइंग भी डिफरेंट हो गई है अभी. और जैसे आपने पे पैरिटी की बात करी तो मुझे लगता है कि जो लोग सोचते थे कि अरे लाइक मैन और वुमेन को थोड़ा लाइक अलग रखा जाता है, बट नाउ अभी काफ़ी सिमिलर हो गया है. और आई एम वेरी श्योर कि आने वाले 10 इयर्स में वुमेन्स और भी ज़्यादा ग्रो करने वाले हैं. वेल आई कैन ओनली होप जो आप कह रही हैं वो 100% सच हो और वो हो जाए, क्योंकि दिस कंट्री विल डेफिनेटली वांट मोर दीप्ति शर्माज एंड मोर शेफाली वर्माज. एक लास्ट कन्वर्सेशन और उसके बाद में हम रैप कर लेंगे. टीम बॉन्डिंग, सक्सेस जब मिलती है तो क्या वो टीम बॉन्डिंग को ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बनाती है, या जो एक डेस्परेशन मोड चल रहा था जब कोई ट्रॉफी आ नहीं रही थी, कोई टाइटल आ नहीं रही थी? मेरे को फ़र्क बताइए कि क्या फ़र्क होता है जब वो एक जर्नी चलते रहती है तब टीम तो वही खेल रही है ना, और जब विक्ट्री आती है तो वही टीम सेलिब्रेट भी कर रही है, बट जो बॉन्डिंग होती है वो सक्सेस के साथ स्ट्रॉन्ग होती है या? बिल्कुल सर, सक्सेस के साथ ऑब्वियसली टीम के जो बॉन्ड है वो और ज़्यादा बढ़ जाता है. एंड बॉन्ड के साथ साथ बिलीफ भी और ज़्यादा बढ़ जाता है, क्योंकि हम सबको पता है ये वर्ल्ड कप के लिए हम सब कितने टाइम से हार्डवर्क कर रहे थे एंड कितने टाइम से इसका सिर्फ सपना देख रहे थे. एंड आज से ही नहीं, जब से मैंने खुद क्रिकेट खेलना स्टार्ट किया था तो मुझे तो बस ये था वर्ल्ड कप जीतना है. बिकॉज वी ऑल नो कि वुमेंस क्रिकेट कितने टाइम से एक वर्ल्ड कप के लिए हार्ड वर्क कर रही है एंड वो मिल नहीं पा रहा, बट वी आर वेरी ग्रेटफुल कि हम उस टीम का पार्ट हैं और हम वो बंदे हैं जिन्होंने वर्ल्ड कप जिताया है. एंड वी आर वेरी ग्रेटफुल. एंड सर ये जीत हमेशा और हार्ड वर्क करने की क्षमता देती है हमें, और हमें अभी रुकना नहीं है, हमें इस चीज़ की आदत लगानी वर्ल्ड कप जीतने की. ये पहला है और हम सबका यही रहेगा कि हम हर बार अपनी सरजमी पर अपना वर्ल्ड कप लेके आए. थोड़ा धीरे, लेकिन 25-30 साल तक और खेलना है आपको. अरे सर, जितने वर्ल्ड कप लाएंगे उतने ज़्यादा और अपना देश प्राउड करेगा. Thank you so much. That is lovely to hear. Again, a small way of saying a big thank you for making us proud, making us believe in ourselves, thinking fearlessly as a nation, those iconic milestone events that happen. And I'd like to request K. Srinivas to please felicitate our guests with a small memento. From India to the world through the lens of India's girls. Truly our girls, only the start of what promises to be a fabulous journey. Thank you so much.